हमारे कॉलेज के बाहर सीन पीपल masturbating ऑन द स्ट्रीट. on the street. ऑल्सो सब महिलाओं को ब्लो जॉब देना नेसेसरी नहीं होता है, उनको मजा नहीं आता. ये भी पॉन आपको कुछ गलत दे रहा है. I have friends, but उसको तो किसी पंडित ने बोला था you don't do it, you are Lakshmi. What? Even Shahrukh gave you some सांत्वना, no? He was very kind. पहले दिन ही जब वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा मैं अम्मा नहीं बुलाऊंगा तुम्हें. You know एक फीमेल एक्टर से क्या एक्सपेक्टेशन? ऑब्वियस सी चीज होती है she will look beautiful. One girl, लड़की ने पल्लू लिया हुआ था. I was like ये क्या हो रहा है? She said that's the character, पल्लू लेके सीन करना है. सर मैं करूँगी नहीं, बाय बाय. मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि I want to pick up work which makes some impact. ये देखिए हम लोग ले आए हैं रिद्धि डोगरा जी को मेल फेमिनिस्ट पे. क्या हाल है आपके? क्या वेलकम टू द शो. भाई देखिए हम लोग लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप जिस तरीके की फेमिनिस्ट हैं वो कैसे बनी. व्हाट शेप्ड योर लाइफ टू बिकम हू यू आर? I come from a family of lawyers, तो एक argumentative attitude. अच्छा, सब तर्क वितर्क चलता रहता था ऐसा? बहुत मतलब I given would है. never stop. मेरे डैड अगर बोल रहे हैं कि रिद्धि होली पार्टी पे नहीं जाएगी क्योंकि वहाँ like people do all sorts of things. I would take it up with him and I would yell at him and tell him कि आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते क्या? You don't trust your daughter. You think कोई भी आएगा मुझे कुछ भी पिला देगा. So I've always been that kind of a person. मैं और मेरे भाई दोनों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता था. मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ दिखता था फर्क. And it's very typical कि जब भी कहीं जाना होता था कोई फैमिली फंक्शन में, my brother feels it, मुझे नहीं जाना, it's okay. But I have to go. That was one thing that I noticed after a few years. I was like, and अभी जब मैं अपनी मॉम को बताती हूँ, she doesn't realize it also. She's like, no, हमने ऐसे कभी नहीं बोला. Also बहुत young age में I used to come to Bombay because मेरी family रहती है. तो मैं जब भी बॉम्बे से दिल्ली जाती थी, I used to understand कितना फर्क है in how free I feel in Bombay. दिल्ली में मतलब sleeveless मत पहनो, shorts मत पहनो, all that was there. I have been grabbed in my colony. मैं अपनी दोस्त के घर से घर वापस जा रही थी. There were two guys स्कूटर पे and I was grabbed. Probably मेरी जगह कोई और होता, वो बोलती मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, या फ्रीज हो जाती. मैं भी फ्रीज हुई. I froze for like 5 seconds and then मेरे अंदर की झांसी की रानी like this is not done. I mean वो intrinsic है मेरे अंदर, but ये कितना गलत है. Honestly this was one of the biggest reasons जो मैंने दिल्ली छोड़ा और मैं बॉम्बे आई. I don't see any hope with the men and उनकी गलती भी नहीं है, वो conditioned वैसे है. बचपन से सिखाया है don't cry like a girl. Cry like a human. DTC buses and you've had that life also. Yes, so that yes. must also have had some scars. कॉलेज में I remember हम सब पैसे बचाना चाहते थे और my friends would take, मतलब because I would say privileged life, तो मैं हमेशा सोचती थी बस में नहीं जाना, लेकिन when you're with friends तो सब try करना है. So I have gone in DTC buses, stood jam packed ऐसे like sandwich and वो बस जब ब्रेक लगती है तो सब आगे जाते हैं, फिर सब पीछे जाते हैं, वो सब एक्सपीरियंस किया है. I was in a girls college in Delhi. हमारे कॉलेज के बाहर I have seen people getting off. Like I've seen people masturbating On the street. on the street. Like this is my college का wall. यहाँ पे वो लड़का खड़ा है. And anybody who's from Delhi would say yeah ये तो होता है. हाँ प्लीज कमेंट में हमको बता दीजिएगा. Yeah, क्योंकि a lot of girls will say that. And I've also seen so Kamala Nehru College और GK M Block Market हाँ. बहुत पास थे, तो we used to walk it down. While walking back we've had a car walk with us, black windows, कुछ दिखाई नहीं दे रहा अंदर कौन है, and suddenly the guy, like there was a guy who would roll down the window and he's masturbating. It has happened. You have sat in autos with like compass, ही लाल मिर्च एक पैकेट हाथ में है, and we all very strategically would sit in the corner कि अगर कुछ भी हो तो we can just jump off. This was a normal day in my life. I remember जब निर्भया केस हुआ था, I was fully heartbroken. The way प्रोटेस्ट हो रहे थे, मुद्दे की बात तो हो ही नहीं रही, राइट? हम वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड एवरीथिंग एंड मैं तब तक बॉम्बे आ गई थी. आई वॉज हियर वेरी वेल एंड आई वॉज लाइक दिस इज व्हाई आई लेफ्ट दिल्ली. एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे मैंने ये सोचा था कि मैं माइंडफुल होना चाहती हूँ इन द वर्क आई पिक अप. नो स्किम्पी क्लोथ्स फॉर नो रीजन, नो आइटम सॉन्ग्स फॉर नो रीजन, नो म्यूजिक वीडियोज वेयर आई हैव टू लुक हॉट एंड वन बॉय हैज टू ऑगल एट मी. मुझे करना ही नहीं है बिकॉज ये तो हमारी कंट्री है. मतलब हाई स्पीड टिट शॉट नहीं. मैं आई विल किल who wants to do that. तो आप मुंबई आ गई. जो आप चेंजेस की बात करती हो, अगर
इफ यू टू संक्षेप में टेल मी 5 डिफरेंट प्लेसेस जहाँ आपको क्लियरली ये चेंज दिखता है. आई थिंक सबसे पहले डिफरेंस था व्हेन आई वाज अ किड एंड आई रिमेंबर मैंने बॉम्बे में खरीदी थी एक ब्लैक शॉर्ट्स और मैं क्लास 8th में थी और वही सेम शॉर्ट्स मतलब यहाँ हम रोज वर्सोवा बीच पे जाते थे, वहाँ खेलते थे एंड वी यूज्ड टू वॉक बैक होम. सात बंगला पे मेरी मासी का घर था. सो वही ट्रिप के बाद मैं दिल्ली वापस गई एंड वही सेम शॉर्ट्स फिर मैंने दिल्ली में पहने अपनी कॉलोनी में. I could not look at my own self. Like I saw my legs, I was like, oh my god, too much is visible. I'm so fair, I can't wear it. Everybody will be able to see. How that switch? How did I get so, मतलब conscious? Why should I live like that? कोई भी और महिला मेरे साथ बैठ के at your age will not be like शाहरुख खान की मदर का रोल मिल रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, how will it look, लोग क्या कहेंगे, ये वाली परसेप्शन वाली बातें तो होती हैं ना. I feel like मेरा point of existence is कि मुझे इन सब चीज़ों को डिफाई करना है, चाहे कोई इंटरेस्टेड है या नहीं कि मैं कर रही हूँ. जितनी भी चीज़ें एज अ वुमन हमें रिस्ट्रिक्ट करती हैं, अगर मैं इतना फील करती हूँ कि नहीं रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, तो एक्चुअली जब अपॉर्चुनिटी आई थी जवान की, आई वाज लाइक ओह नो, अब क्या करेगी तू, बड़ी बड़ी बातें करती है, रिस्क लेती हूँ मैं. Are you going to take this up? And I was like, come on, Riddhi, do it. Even Shahrukh gave you some santvana, no? Yeah, he did, and I didn't expect it at all. It was like, oh, he understands it. मतलब मैं बहुत shy भी थी on set to talk to him. I think because I've grown up loving him. He was very kind. पहले दिन ही जब वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा मैं अम्मा नहीं बुलाऊंगा तुम्हें. वो किया था क्या आपने मैनिफेस्ट टाइप वाली चीजें? किस चीज के बारे में? कभी करेंगे ऐसे शाहरुख वाली फिल्म? Actually नहीं, because you know when I was growing up and when I saw him romancing heroines, I was a kid. So you will never manifest कि one day he will romance me. Even like the choice of roles की जब मैं बात करता हूँ तो ये भी है ना कि जिस तरीके के सीरियल चल रहे थे उसमें से एक एंटी पेट्रियार्की की जो कहानी है, पल्लू नहीं पहनने वाली जो बात है, वो भी करना या सोचना या कदम उठाना, और कड़क किल कर रही हैं आप तब, मतलब हाँ उस टाइम पे नाम है आपका, वो चॉइस भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग है. इसकी मैं कहानी बताती हूँ. आई हैड डन वन शो, तो मेरा सबसे पहला शो वाज अबाउट डांसर्स. Correct. नो गेटिंग इनटू दैट होल सास बहू नॉनसेंस. एंड देन आई रिमेंबर वही टीम ने मुझे बुलाया एक ऑडिशन के लिए एंड मैं गई तो सॉ वन गर्ल एंड वो मेरी मतलब मैं जिन्हें जानती थी वो ऑडिशन ले रही थी क्रिएटिव, तो लड़की ने पल्लू लिया हुआ था. आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? She said that's a character, पल्लू लेके सीन करना है. I said मैं करूँगी नहीं, bye bye. So I came back and that show was a very big show. Went on for some 5-6 years. ससुराल सिमर का और साथ निभाना साथ, I don't know, one of these two. Unbelievable to have said no to either of those. Exact, मतलब if you look at it like that कि I said I didn't even audition. Not that I said no, I said पल्लू सर पे है, मैं नहीं कर रही हूँ. So when I started acting, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की that as a television actor हमारे बहुत promotions होते थे, हम you know tier 2, tier 3 cities में जाते थे and there were a lot of women, a lot of girls जो follow करते हैं हमें and you know they remember what we say and what we are doing in the serials. मैंने उस time पे decide कर लिया था कि I want to pick up work which makes some impact. You know मुझे ऐसा ही काम करना है. ऑफ कोर्स इंट्रिंसिकली वो सास बहू मैं करना ही नहीं चाहती थी, बट आफ्टर दैट आई मेड श्योर कि अगर मैं टेलीविजन कर रही हूँ और यहाँ का सेटअप है जो है, आई कांट चेंज इट, बट आई वुड बी दैट एक्टर हु विल से व्हाट इज माय कैरेक्टर वेयरिंग एट नाइट टू स्लीप. उस टाइम पे सब बोलते थे अरे एवरीवन वेयर्स साड़ीज एंड यू नो ज्वेलरी पहन के सोते हैं. सो आई वुड बी दैट एक्टर हु विल से नो, डिजाइन अ लुक फॉर हर. शी हैज टू वेयर, आपको नाइट सूट देना है, आपको सूट देना है, आपको नाइटी देनी है, व्हाटएवर यू वांट टू गिव दैट्स योर चॉइस, बट आई विल नॉट स्लीप लाइक अ you know person who's decked up and suddenly सो गई और उठ गई. So I literally took it like that कि ठीक है मैं यहाँ हूँ और लोग बोलते होंगे बहुत रिग्रेसिव है, but A, I'm making great money and B, यहाँ पे रह के कुछ चेंज कर पाना is a bigger high. I remember एक शो था जिसमें मैं नेगेटिव थी. I refused 50 things that they wanted me to do. I remember they told me कि आपका कैरेक्टर एसिड फेंकेगा हीरोइन पे. I went into a big fight with the whole channel और मतलब I said मैं नहीं करूँगी ये शूट. So I said आप ये थॉट भी क्यों डाल रहे हो, इस प्राइम टाइम पे ये आएगा, एक लड़का कोई जो इरिटेटेड है किसी लड़की से उसको आप आइडिया दे रहे हो. I will not do it. You know then they all think like again उनको लगता है अरे लड़की है, you know she wants to be a heroine, she doesn't want to look bad. I said you want me to आप चाहते हो मैं बुरी लगूँ, I'll do 50 things to look bad. हाँ, बाल टूप लेंगे हम. I'm all for the character. बट ये नहीं करूँगी मैं, यू नो आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट एंड आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू डू इट. आई वॉन्ट टू से
टू द विमेन आउट देयर कि पूरी दुनिया बनी है ना, ये बनी है आपको ऐसे साइड में रखने के लिए। आप मेकअप में घुसे रहो, हेयर में घुसे रहो, कॉस्ट्यूम, हाउ थिन यू आर, हाउ फिट यू आर, एज, इन सब चीजों में आप रहो। यू स्टे complicated in this while men will rule the world. And then if you in a meeting say something loud, तो why are you being difficult, or why are you talking like this? Same time if a man does it, he's taking ownership, he's taking charge. He's taking charge. तो फीमेल प्लेजर वाली बातें वो हम इसलिए खुला करते हैं क्योंकि लोगों को जो समझ आ रखी है, एटलीस्ट मर्दों को काफी हद तक समझ पॉर्न से ही आ रखी है। उनकी क्या समझ रहे हो? कुछ समझ ही नहीं रहे हो। हाँ, अगर आप पॉर्न से समझ रहे हो तो हाँ, तो वो मेरे ख्याल से हम उसके बारे में ये बात करते हैं कि भाई आपकी प्लेजर को लेके समझ कब बढ़ी, were you able to discuss it with partners and friends or whatever? I would say this, growing up, मतलब आपने बड़े होते हुए मैंने कॉस्मोपॉलिटन बहुत पढ़ा है। I cannot begin to tell every girl out there, stop reading fashion magazines. They genuinely do make you feel ugly. So just steer clear from them. ये प्रोडक्ट लगाते ही positions, 100 positions. I mean, why so much? कौन जिम्नास्टिक है भाई, ये लोग मेरे को समझना है। Yeah. और आप दोनों डिस्कस करके अपनी पोजीशंस आप फिगर आउट कर सकते हैं। Exactly, and that's how it should be. लेकिन ऐसा है नहीं। I think women are slightly more open than men. I don't think men are so open. Maybe because they watch a lot of porn. Also सब महिलाओं को ब्लो जॉब देना नेसेसरी नहीं होता है, उनको मजा नहीं आता। ये भी porn आपको कुछ गलत दे रहा है। Yeah. I have friends. I mean, I don't want to name that friend. I can't. But उसको तो किसी पंडित ने बोला था, you don't do it. You are Lakshmi. What? हमारे देश में ये होगा कि आपके पंडित बोलेंगे आपको कि आप ये देखिए, जो भी हो, हस्त मैथुन ओके, किसिंग ग्रेट, सेक्स ओके, डोंट गिव ब्लोजॉब्स। My friend is going to kill me, but nobody knows it's you, so it's all good. बॉडी इमेज इश्यूज भी मेरे को काफी मेरे को लगता था वही बॉडी है सही, या ये साइज ही साइज है। हम तो मतलब Correct. जिल्च। No, everyone everywhere. मतलब मैं बहुत पहले एक मूवी की ऑडिशन के लिए गई थी, बहुत पहले जब मैं टेलीविजन करती थी, और तो आई रिमेम्बर मुझे तब बोला था, यू डोंट लुक लाइक अ सुपर मॉडल, वी वांट अ सुपर मॉडल। यू ऑल्सो फील कि आजकल अबला नारी जो दिखाया जाता है टीवी या फिल्म्स में, अगर राइटर्स चेंज हो, अगर फीमेल राइटर्स आए, तो ये अबला नारी वाला जो सीक्वेंस है अगर वो बंद होगा तो भी एक मैसेज बाहर जाएगा, नहीं? मेरे साथ फॉर्चुनेटली यही चीज अबला नारी, या बोल लो कि मुझे शुरू से बोला था कि यू डोंट हैव अ बेचारा फेस। एक तो इमेजिन, मैं सब ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि आप सोच लो, एक रिलेटेबल लगने के लिए ऑन टेलीविजन यू हैव टू बी अ बेचारा फेस। What does that say about you? So मुझे बहुत बोला जाता था, you have very sharp features, बहुत तू आप बेचारे नहीं लगते हो। So I actually took it as a great thing for myself. मुझे लगा मैं अबला नारी नहीं लगती, great, let me defy it. So I always chose to do parts that अबला नारी नहीं है तो ठीक है, अभी how will this girl be? Asur also, like I remember, एक फीमेल एक्टर से क्या एक्सपेक्टेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट एक ऑब्वियस सी चीज़ होती है, शी विल लुक ब्यूटिफुल। एंड आई थिंक जब तक मैंने असुर किया, आई हैड क्लियरली डिसाइडेड कि कैरेक्टर्स सामने आने चाहिए, तो असुर के लिए मैंने मेकअप भी नहीं लगाया था। आई लिटरली डिड कि ये फॉरेंसिक की बंदी है, शी विल, और मेरा एडी रोज बोलता था ये 4 दिन से सोई नहीं है, 2 दिन से सोई नहीं है, ही वुड टेल मी दैट व्हेनेवर आई वुड कम ऑन सेट। तो आई स्टॉप पुटिंग मेकअप फॉर हर। आई सेड हेयर मैं करूँगी नहीं, आई जस्ट टाई अ जूड़ा विद अ रबर बैंड, आई टेक लिप बाम, लिटरली लाइक मे बी इसकी आंखें इतनी नींद में होंगी कि ये ऑन द वे शी इज पुट लिप बाम हियर टू मेक हर सेल्फ लुक अ लिटिल अलाइव, एंड आई डिड दैट, एंड दैट्स फ्रीडम। व्हाट आई मेंट टू से इज कि लाइक दैट्स माई वन थिंग विद एवरी कैरेक्टर, कि मुझे कैरेक्टर को हेयर मेकअप में ड्राउन नहीं करना। I don't want to look, like maybe some people will say, like I did a show called Badtameez Dil. Probably expectation होगी कि we'll have the most fashion and all of that, but the character had body image issues. जब styling हो रही थी तो मेरी team was trying to make me look very hot. And I was like, no, that's not the brief. I can't make fun of the people who are actually having body image issues. Yeah. So I have to show what I am most नर्वस, और मेरी बॉडी में लाइक माई हिप्स एंड थाइज, जो मैंने बोला, जो कपड़े मुझे पता है सूट नहीं करते मैं वो पहनूंगी, ताकि वो दिखे तो सही कि इसकी बॉडी इमेज इश्यूज हैं। किसी ने बोला कि आपको हिप्स एंड थाइज के बारे में? 50,000 बार, लाइक दे वुड से मटका बॉडी है। बट एज को लेके कभी कमेंट्री नहीं आई कास्टिंग के साथ किसी की? रिसेंटली आई एम सीइंग देयर आर 3-4 साल का फर्क होता है लोगों में, एंड वन हीरोइन इज अ मदर एंड वन इज नॉट प्रॉब्ली, एंड लाइक देयर इज अ world of a difference in the roles offered.
It's crazy. So it's not really about the age. It's about just constantly हम women को bracket में ही डालते रहते हैं. How can men be better allies? I think just let women speak and just listen. Don't shut them down. Agree to disagree. Yeah. Go ahead. But let them speak. What are red flags according to you in a relationship? Number one would be not respect someone. Like I said again, agree to disagree, but किसी की feelings, कोई जो feel कर रहा है, उसको rubbish मत करो. और एक और चीज़ की, I know what she wants. अरे let her talk, let her speak for herself. That is a big problem because women also become comfortable thinking this is love. But they don't know कि they're shutting down their, their agency fully. कि मतलब he knows best, he loves me. But it's actually a red flag. ये Because the gaslighting day है. you will speak, they'll not be able to handle it. Yeah. Green flags क्या होते हैं? ये बात कर लेते हैं हम लोग. Green flags, I think, would be someone who agrees to disagree, someone who is able to take jokes on themselves, someone who allows you to make mistakes. And by saying allow means you made a mistake, it's cool. Don't feel dejected or don't feel guilty. It's okay. That, वो आपकी convenience पे नहीं हो सकता. Or like being there for somebody when they want you to be there. Not I do so much for you, yaar. You don't see what I do for you. Like that's a red flag. But a green flag is understanding someone if somebody needs space on a particular night, giving them that space. That not कि आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ. You needed space ना, आज ले ले space. That's not the right. That's convenience आपकी, not theirs. Yeah. कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया. I didn't want it to end. है ना? Yeah.